ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਲਖਨਊ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। तो 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਜੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਮਿਸਟਰ ਮੌਰਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਖਫਾ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੀਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੌਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਿਲਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ। ਆਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਮੌਰਿਆ, 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਆ। में अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। मैंने योगी मंत्रिमंडल से मंत्री पद से इस्तीफा दिया और कारण मैंने स्पष्ट किया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्गों के आरक्षण के साथ So this is a big breaking story that is coming in. Arrest warrant issued against Swami Prasad Maurya soon after he resigned as cabinet minister in the Yogi government. He said, however, that he's not joined the Samajwadi Party just yet, but an arrest warrant has been issued against him. He has to appear before court on the 24th of January. This is regarding a matter in 2014 where Swami Prasad Maurya had made a controversial hate speech comment, and this case, while it dates back to 2014, the arrest warrant against him has been issued just after he quits the BJP government in Uttar Pradesh, and while he hasn't joined the Samajwadi Party just yet. There were pictures of him, of course, with Akhilesh Yadav. Many, of course, questioning the timing of the arrest warrant against Swami Prasad Maurya. This arrest warrant being issued against him soon after he resigned as cabinet minister of the Yogi cabinet. He, remember, was the Labour minister of Uttar Pradesh. There's an arrest warrant that has been issued against him regarding a hate speech case dating 2014. So big questions at the moment on why an arrest warrant has been issued over a case in 2014, just a day after he resigned from the Yogi. और अपने जीने के लिए मुहताज हो जाएं और इनकी मजबूरी का फायदा ये सरकार में उठाते रहें, जिसका मैंने समय समय पर जब कैबिनेट के अंदर भी बात किया, केंद्रीय नेताओं को भी अपना आक्रोश जाहिर किया। Hate speech incident, court has issued an arrest warrant. ਮੌਰਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰਣ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ देने ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, लखनऊ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। धर्मेंद्र जी, एक बार फिर से स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सैनी साहब जी। कल बात कर रहे थे, में राजनीति लगातार करवट बदल रही है। कल भी आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य जी
ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं, उन्होंने सरकार से इस्तीफा दिया। आज दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया है। ये भी कैबिनेट मिनिस्टर थे योगी आदित्यनाथ सरकार में, इनके पास फॉरेस्ट और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री थी जी। इनकी शुरुआत तो समाजवादी पार्टी से हुई है, तो ये तय है कि इनकी वापसी भी होनी है। 1996 में इनको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेजा था जी। ये आजमगढ़ के हैं और वहीं से इन्होंने छात्र राजनीति चालू की। डीएवी पीजी कॉलेज है वहां पे जी। फिर उसके बाद ये 2000 से 2006 तक कंटिन्यू दोबारा किया इनको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में। फिर ये 6 के बाद बीच में इन्होंने बीएसपी ज्वाइन किया। 2009 में आजमगढ़ से संसद का चुनाव लड़े, जीते थे जी। फिर बीएसपी ने इनको 2014 में दोबारा टिकट दिया। 2014 में तो नरेंद्र मोदी जी की लहर थी, उसमें हार गए थे। 2015 में ये बीजेपी ज्वाइन कर लिए, सपा बसपा फिर भाजपा में आए जी। भाजपा ने जैसे ही ज्वाइन किए 2015 में इनको तो उनको पिछड़ा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत बड़ा पद होता है, वो पद दिया। फिर 2017 में इनको भाजपा ने आजमगढ़ के मधुबन से विधानसभा चुनाव लड़ाया, 30,000 वोट से जीते ये। वोट जीत के जब ये विधानसभा में आए 17वीं विधानसभा में, तो फिर इनको योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया और इनका पद लगातार बढ़ता रहा। बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें उत्तर प्रदेश से ये दारा सिंह चौहान, ब्रजेश पाठक, इनको लिया गया, तो बहुत बड़ा पद था। लेकिन अब ये इन्होंने पद अपना मंत्री पद से त्याग पत्र दिया है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ ही है ये। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो मूवमेंट है कल के बाद परसों और पता चलेगा। हालांकि इन लोगों का जाना तय है सपा में। इसी बीच में उत्तर प्रदेश में आज एक विधायक का इस्तीफा ऐसे ही वायरल हुआ था, रविन्द्र नाथ त्रिपाठी के। बाद में उन्होंने इसका खंडन किया कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो इस बीच उठापटक चालू रहेगा उत्तर प्रदेश में और लोगों को भी उत्सुकता रहेगी कि कौन किधर जा रहा है, क्या पाला बदल रहा है, कैसे राजनीति हो रही है। ठीक है जी। अब धर्मेंद्र जी, जैसे इनके खिलाफ वारंट जारी हुए, जब तक ये मिनिस्टर थे तब तक तो कोई ऐसी बात नहीं थी। जैसे ही कल इस्तीफा दिया, आज उनके वारंट जारी भी हो गए और उन्होंने जिस तरह से गुस्से में ये कहा है कि ये बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तो ये एक तरफ तो बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही थी, आप कल बता रहे थे कि उनको मनाने की कोशिश जारी है, दूसरी तरफ धमकाने की भी क्या ये कोशिश है, और इसका क्या ये बीजेपी के हाथ से बात निकलती नजर आ रही है आपको अब सारी? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये जो आया है इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। अब तो सब जगह ये साबित होने लगा कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। आप वैसे नहीं मान रहे तो हम आपको धमका के केस में फंसा के, इससे अब ये बहुत पुराना मामला है। चाहती सरकार तो बहुत पहले भी खुल सकता था, लेकिन ये समय उचित नहीं है जिस समय खोला गया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो प्रतिक्रिया है वो स्वाभाविक है और उनके सहयोगी और उनके समर्थक लोग भी इस चीज से बहुत नाराज होंगे जी। इसका फायदा समाजवादी पार्टी को निश्चित मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर भी इनके फेवर में बोलेंगे, कृष्णा राज भी बोलेंगी, महान दल के नेता हैं केशव दत्त मौर्य वो भी बोलेंगे, सब बोलेंगे इनके फेवर में। अगर ये बात ही करने की बात थी तो एक तरफ से तो वहां पे केशव प्रसाद मौर्य बोले कि मैं बात करूंगा, किसी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये जो दूसरा तीर इन्होंने चला है ये गलत दिशा में जा रहा है। अच्छा, इनका जो दोष है मिस्टर मौर्य का वो ये है कि ये जो योगी आदित्यनाथ है किसी की सुनते नहीं, अपनी मनमानियां करते हैं। वैसे हमें पता भी है उनका जो एक तरह का स्टाइल है काम करने का, वो सबको पता ही है। और कई बार डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे आए, अमित शाह भी आए। तो बीजेपी के लिए क्या ये सिरदर्दी बनता जा रहा है? एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ इतने स्ट्रांग उनके लीडर हैं यूपी में, वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते उनको नाराज करना, उनको हटाना, परंतु दूसरी तरफ उनके कारण जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ये क्या जो बीजेपी की पार्टी है, जो सेंटर की पार्टी है, उनके लिए मुश्किल होती जा रही है? नहीं, बीजेपी के सेंट्रल बॉडी को निश्चित रूप से वो लोग इसमें हस्तक्षेप करेंगे। जो एरोगेंसी की बात आ रही है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, वो पहले भी थी। अब इन लोगों ने रिएक्ट किया है तो अब इतना उसको सीरियस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अब आप ऐसे टाइम पे बोल रहे हो जब वो भाई सरकार
तो जब चुनाव घोषित हो गया तो कोई सरकार ही नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। अगर ये चीज पहले विरोध होता तो हो सकता है कि पहले बेटर सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन अब इन चीजों को कि जब आप पद पे नहीं हो तब बोल, पद पे रह के विरोध करना बड़ी चीज होती है। बीच में दारा सिंह चौहान ने किया भी था, ये जब मिनिस्टर थे तो इनके क्षेत्र में कुछ बिजली की समस्याएं थी तो उन्होंने सीधे लिखा था मिनिस्टर को, श्रीकांत शर्मा को, ऊर्जा मंत्री को, तुरंत संज्ञान लिया गया। सही चीज भाई, पहले इन्होंने बात की थी शायद उनसे, जैसे कहा जा रहा है, इन्होंने खुद कहा कि मैंने उनसे बात की थी कि हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्या है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो पत्र लिखा। तो वो रिएक्शन बिल्कुल ठीक था जब आप सरकार में थे। अब सरकार से बाहर होने के बाद बातें करोगे तो उतना आदमी सीरियस नहीं लेगा, सीधे ऐसे ही बोल देगा कि बाहर हो गए इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं जी। और जो मुख्यमंत्री की एरोगेंसी की बात है वो पहले भी होती रही है जी, तो विरोध उसी समय होता तो ज्यादा उचित रहता जी। धर्मेंद्र जी, लास्ट क्वेश्चन जाते जाते कि ये जो अजय मिश्रा हैं जिनके बेटे पे दोष लगा हुआ है कि उन्होंने किसानों को कुचला, उसको भी हटाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन पार्टी ने उनको भी सेव किया, एक तरीके से डिफेंड किया। हालांकि किसान सख्त नाराज हैं उस बात को लेकर अभी भी। तो ये बीजेपी की जो मुश्किलें हैं यूपी में जो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, अभी पता नहीं क्या होने वाला है आने वाले 2-4 दिनों में, हफ्ते में। तो ये सारा कुछ देखते हुए हमारा इंटरेस्ट यूपी में इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है और यूपी में अगर बीजेपी हारती है तो इसका सारे मुल्क की राजनीति पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बीजेपी पंजाब में चोन हार जाए उसको इतना, उसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, किसी भी और स्टेट में हार जाएं चिंता की बात नहीं है, लेकिन यूपी उनका गढ़ है और बहुत बड़ा गढ़ है। इसलिए हम बार बार आपसे बात करते हैं कि यूपी के चुनाव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अभी टू अर्ली टू से, लेकिन जिस तरह से आपके ये यूपी में उठक पटक शुरू हो गई है, लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत बहुत कुछ चेंज होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सैनी साहब, यूपी की राजनीति बहुत अहमियत रखती है। 84 सांसद चुन के जाते हैं, देश की दिशा और दशा उत्तर प्रदेश से तय होती है जी। और यूपी के जहां तक आप चुनावों की बात कर रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश में नहीं विदेशों में भी बड़ी चर्चा है। कर 2-3 दिन से तो मैं पाकिस्तान से काफी सुन रहा हूँ प्रतिक्रियाएं जी। इवन बीबीसी ने बताया कि इंग्लैंड में बहुत चर्चा हो रही है, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है जी। और फेस जो आ रहा है सामने से योगी आदित्यनाथ का ही आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बीजेपी को इस चीज पे अभी थोड़ा सा कूल डाउन होना पड़ेगा। ये जो डैमेज कंट्रोल की बात हो रही, जो विधायक भागने को तैयार है, क्योंकि बीच में स्टेटमेंट भी आए हैं भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने कहा कि हम किसी भी विधायक का टिकट काटने नहीं जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है उसके लिए, लेकिन आदमी विश्वास नहीं कर रहा। आपको विश्वास जीतना पड़ेगा इस चीज के लिए। अरे धर्मेंद्र जी, कुछ करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमने कर। ये जो बीजेपी की नीति रही है, बल प्रयोग करना, धमकाना, डराना, टेरर पैदा करना, आई डोंट नो वो सीख नहीं रहे हैं। किसानों के साथ भी यही किया, कभी वो कीलें बिछा दी, कभी कंडियाली तारें लगा दी, कभी उन पे केस दर्ज हो गए, बहुत कुछ किया, लेकिन उन डरे नहीं किसान और आखिर में प्राइम मिनिस्टर को फिर माफी मांगनी पड़ी, वही कानून वापस लेने पड़े। बिल्कुल बिल्कुल तो अभी उन्होंने मुकदमे वापस लिए, उन्होंने कृषि कानून को वापस लिया और वो जो बिल्कुल बात बता रहे हैं आप लखीमपुर खीरी की, भाई जब किसी भी चीज की चार्जशीट फाइल हो गई और उसमें बताया गया कि हाँ वो अक्यूज्ड है मिनिस्टर अजय कुमार मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा, तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तब सरकार कह रही कि आरोप सिद्ध हो जाएंगे, तब भाई आप चार्जशीट जब फाइल हो गई उसमें आरोपित है तो आरोप सिद्ध होने की बात वेट कर रहे हैं आप कि हमें न्याय है, न्यायालय से उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, एसआईटी जांच कर रही है, जब उसकी रिपोर्ट आएगी तब हम कुछ करेंगे। तो इसमें इंतजार नहीं करना चाहिए था, इसमें एक्शन प्रॉम्प्ट होना चाहिए था। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा किसानों का आंदोलन। वरुण गांधी अगेंस्ट में लगातार हैं, तो सिर्फ इसी वजह से है वरुण गांधी की, भाई उन्हें लग रहा है कि किसानों के साथ इंजस्टिस हो रहा, और अभी से नहीं 5 सितंबर से वरुण गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं जब इनकी किसानों की महापंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में जी। तो बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने नेता जब विरोध करने लगेंगे तो मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। धर्मेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और 2024 के जो चुनाव है लोकसभा के, वो बहुत कुछ निर्भर करेगा। ये जो यूपी और पंजाब के नतीजे आएंगे, पंजाब के नतीजे भी मैटर करेंगे, लेकिन यूपी के नतीजे सबसे ज्यादा मैटर करेंगे। सो देखना होगा
कि इन चुनावों के क्या नतीजे आते हैं। यूपी के लिए आपसे बात करने के लिए फिर से हम कोशिश करेंगे अगले हफ्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जुड़े होए हो ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ।